مائک چلا بیٹھ جاؤ سارے لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھو بھی بیٹھو دیکھو سمر صاحب میرے بھائی نے ساڑھے شہر دینے بھائی تو انہوں نے مثالاں دیتیاں بکری راضی رکھ دیا گل سن پہلے گل سن جدو ایک بندہ مدینے پاک جا کے بندوں کو ذلیل ہوتے دیکھا اور پھر وہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں. یہ دنیا دار تمہیں کچھ نہیں دے سکتے, سرکار دے سکتے ہیں. یہ میری بات لکھ لو. کب تک تم ان کے پیچھے چھپ کے اپنی جان بچاتے رہو گے؟ اگر آپ میں غیرت ہو, ایک دنیا دار پورے شہر کا آپ کے ساتھ نہ ہو, آپ کو کوئی نہیں دبا سکتا, چونکہ آپ کی پشت پر میرے سرکار کا ہاتھ ہو. پتہ نہیں یہ ہمارے لوگ منافقوں والا کام کیوں کرتے ہیں. وہ مولویوں میں ہوں, پیروں میں ہوں, نعت خانوں میں ہوں, انسان بننا چاہیے. اور جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر برتن میں منہ نہیں ڈالنا چاہیے. نبی پاک نے پتہ کیا مثال دی ہے؟ میں حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں. مشکاہ شریف میں حدیث ہے, فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے, ہوئے 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 ایڈی تتی مثال. تو میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کر دے پتر. اس کے پیچھے کو راز ہے. جس نے پڑھنے ہی کسے کہانیاں دوڑے مائیے سنا کے ٹر جانا ہے, وہ تو کی دین مسلک دسے گا. اور جس نے ہر برتن میں منہ ڈالنا ہے, وہ منافق تمہیں کیا بتائے گا؟ بتائیں گے وہ جو احمد رضا کو پڑھتے ہیں, وہ بتائیں گے تمہیں اصل حقیقت کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو اس واسطے حضور نے فرمایا یہ موبائل جیبوں میں ڈالیں گے حضرات. اوے کاکے اوے جیب چپائے نو, جیب چپائے کسے بندے دا موبائل باہر نہ ہوئے ہوں. او پانچ کے میں تو سمجھا کو میں پی ٹی آئی چھڑنا آیا, انہیں کیمرے لائے نے, انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس ہونی, اللہ دیو بندے ہو انہوں نے جیباں چپاؤ. ادھر میرے حال ویکھو, گل سنو خدا دے بندے ہو, آپ موبائلاں جو کسی لے نکل کے بھی سن لیا کریے. تو میں یہ بتا رہا ہوں, آقا کریم نے فرمایا کہ یہ منافق جو ہوتا ہے نا, اس کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے, بہت اچھی ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ یہ جو منافق ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ اپنے اسی شہر میں مثال, وہ منافق بڑے پسند آتے ہیں سب کو. منافق سارے اندر نال ہے, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, بات ٹھیک ہے. او میرا مذہب تے مسلک کتھے؟ یہ تو منافقت کی بھیڑ چڑھ گیا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ تو پھر وہ سارے بکرے تو یہی کہیں گے نا, بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت بہت اچھی ہے, یہ تو فلانا تو سخت ہے, فلانا تو سخت ہے. میں کیا فلانا غیرت مند جو ہے اس لیے سخت نظر آ رہا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بندے کو منافق نہیں بننا چاہیے, بندے کو خالص بننا چاہیے. اور یہی بات جو میں سمجھاؤں حضرت شاہ صاحب جن کو پیغام دے رہے تھے کہ آپ کو مخلص بننا چاہیے, منافق نہیں بننا چاہیے. بن کے دیکھ لیں, وڈے وڈے بڑے لبے ہی نہیں, آپ دیکھ لیں اور یقین اللہ تے کرو, یہ آپ کی ٹوبے کی عوام بتائے گی کہ ان کے پلے کیا ہے. سمجھنا چاہیے ہم سب کو اپنے مسلک کی حد کو کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے. اور یہی ہمارا شروع سے اختلاف رہا ہے, اور ہم نے تنہا رہنا سیکھا ہے لیکن منافقوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں سیکھا ہے. اور دیکھ لو پھر اللہ نے سارے جہاں میں عزت دی ہے. اب وہ کہتے ہیں یار ساڑھے نال رالدہ بھی نہیں تھے سارے ہیں, تو اگے بھی ہے, تو اگے مسلک لے کے جاتا ہے, غیرت لے کے جاتی, بغیرتی نہیں لے کے جاتی. بھائی بغیرتی آگے نہیں لے کے جاتی. یہ میری بات لکھ لیں آپ حضرات. عدم تشدد کی ہم بھی قائل ہیں, امن کے ہم بھی قائل ہیں, پر مسلک کو خلط ملط کر دینا اس کے ہم قائل کوئی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے نعت خان, مولوی, نقیب سب کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں غیرت کی دنیا عطا فرما دے. میری ملت کے جتنے علماء سادات میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بالخصوص مفتی قبلہ عبد المنان صاحب نقشبندی دامہ اقبالہ, سید سخاوت حسین شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں, آپ تشریف لائے ہیں. ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا علیار صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہیں, اور حضرت علامہ علی شان صاحب آپ تشریف فرما ہیں, اور ہمارے بھائی بلال شمس و زمان صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں, و دیگر جتنے اہل محبت, ہمارے بھائی محمد عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قاری احمد نواز صاحب ماشاءاللہ, اور دیگر جتنے حضرات ہیں. اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. آئیے حضرات, میں چند ضروری گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ شاہ صاحب کی گفتگو سے میں نے کہا چلو میں بھی اپنی حاضری لگوا لوں, اور یہ لگوانا ضروری ہے. جی بالکل, بندے کو منافق نہیں ہونا چاہیے. اور منافق کو آپ نے, میں نے بتا دیا, یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے.
تو اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے. ہر بکرے کو چسکا لینا ہے, بکرے نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. تو اس واسطے آپ دھیان میں رہیں اور آنکھیں کھول کے. حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دینیاں نے ایک باری. بغیرت ہو تو پھر سمجھ آتی ہے, بغیرت کو کیا سمجھ آئے گی. جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے نا جی, اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا. یہ 16واں پارہ سورہ مریم کا پہلا رکوع ہے, اور دوسرا پڑھیں تو اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت کا ذکر ہے. فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ, اور فرمایا سلام ہو اس دن پر جس دن وہ یحییٰ پیدا ہوئے ہیں. اچھا یہاں پر ایک دو باتیں قابل غور ہیں. نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, چونکہ وقت تھوڑا ہے میں شارٹ کر کے جلدی جلدی آپ کو سناتا جاؤں گا. نبیوں کی ولادت کا بیان کرنا یہ رب کی سنت ہے. ہم داڑھی رکھتے ہیں حضور کی سنت, پگڑی رکھتے ہیں حضور کی سنت. میلاد بیان کرنا نبیوں کا رب کی سنت ہے. یہ مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا ہے یہ سنت اللہ ہے, اور سنت اللہ کا رتبہ سنت رسول سے زیادہ ہوتا ہے. تو پھر میلاد کو تو زیادہ شوق سے بیان کرنا چاہیے. یہ پہلی بات. اب دوسری بات, اللہ نے سلام بھیجا حضرت یحییٰ کی ولادت کے دن پر. اب دن تو باقی بھی تھے, پر یہ خاص اس لیے ہے کہ اس میں نبی آیا ہے. اس دن کو یاد کرنا, سیلیبریٹ کرنا, اور بالخصوص نبی کی ذات پہ سلام بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات توجہ طلب ہے. فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ, جس دن وہ فوت ہوں گے اس دن پر بھی سلام ہو. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, نبی پیدا ہو تب تو سلام سمجھ میں آتا ہے کہ نبی جلوہ گر ہوئے ہیں. اب نبی فوت ہوئے ہیں پھر سلام ہے. تو فرمایا یہی بتا رہے ہیں جو زندہ ہوتا ہے اس پہ سلام ہی ہوتا ہے نا, اس پہ سلام ہی ہوتا ہے. موت نبیوں کو بالخصوص آتی ہے ایک گھڑی کے لیے, آتی ہے اور چلی جاتی ہے. ویسے تو جسے بھی موت آتی ہے نا وہ قبر میں چل کے زندہ ہو جاتا ہے, تبھی تو سوالوں کے جواب دیتا ہے, اور تبھی تو اس کی قبر کو جزاک اللہ یا جنت کا باغ بنایا جاتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنایا جاتا ہے کہ جو بھی اس کا ٹھکانہ ہے یہ حاصل کرے. لیکن حقیقت یہ ہے نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے تب بھی سلام. کیا مطلب؟ یعنی آتے ہیں تو سلام ہے چکو نبی کی ولادت ہو رہی ہے, اور جاتے سلام کیوں ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ مر کے مٹی ہو گئے, وہ وہاں چل کے بھی زندہ ہیں. یہ ان کی زندگی پر یہ دلیل ہے. اور سلام ہمیشہ زندے کے ہوتا, مردے کو کوئی سلام نہیں کرتا. اسی لیے ادھر دیکھو, جب تک بندہ مرا پڑا ہے تو کوئی سلام نہیں کہتا, جب قبر میں دفن کر دو تو پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. پتہ چلا قبر میں چل کے وہ زندہ ہوتا ہے پھر سلام کہا جاتا ہے. اور میں یہیں پر ایک نقطہ, حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ, علماء کی توجہ, یہ جتنی دیر بندہ مردہ ہوتا ہے اسے سلام کوئی نہیں کہتا, لیکن میرے نبی جتنی دیر موت کا ذائقہ چکھا 3 دن تک میرے نبی کو دفن نہیں کیا گیا تھا. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا, ذرا توجہ کرنا, 3 دن تک دفن نہیں کیا گیا تھا. اب یہاں پر روافض زمانہ خذلہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ وہ یہ کہتے ہیں, حضرت شاہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا مسئلہ بن گیا تھا تو لہذا انہوں نے جناب خلافت کی باغ دوڑ اور ووٹنگ کے سلسلے میں نبی پاک کو کسی نے دفن ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا پھر جو گھر والے تھے وہ کر لیتے, تو یہ تو ان کی بھی توہین کر رہے ہو ظالمو. مسئلہ یہ نہیں تھا. اب سنو اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کو یہودی کہا کرتے تھے کہ زندگی میں تو انہوں نے ہمیں کسی بات میں آگے نہیں بڑھنے دیا, یہی جیتتے رہے ہر چیز میں, لیکن جب مریں گے نا تو دیکھنا ان کا معاذ اللہ استغفر اللہ چہرہ بدل جائے گا. استغفر, یہ یہودیوں نے کہا تھا. تو میرے نبی نے یہ کہا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے 3 دن دفن نہ کرنا تاکہ میرا چہرہ بتائے گا میں کل بھی سچا نبی تھا, میں آج بھی سچا نبی. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, یہ تھا نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, تاجدار ختم نبوت. اب بات سمجھ آئی ہے حضرات آپ کو؟ جس کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کہہ لے. گرمی کا مجھے پورا احساس ہے, لیکن آج شاہ صاحب نے کمال کر دیا خطاب میں. جتنا میں نے سنا ہے نا وہ پنجابی کہتے ہیں شاہ نے آج وٹ کر دیتے ہیں, اور بڑے دنوں کے بعد میں نے ایسا غیرت مندانہ خطاب سنا ہے. ہمارے بسا اوقات یقین کرے کان تھک جاتے ہیں
कि हम ऐसा खिताब कब सुनेंगे। तो आज शाह साहब ने माशाल्लाह कमाल किया, हक अदा किया, सारे कर्जे ला दिते ने शाह साहब ने। तो आप भी सुभान अल्लाह वाले कर्जे उतारे ना, जो मुंह कोट के बैठे हो। ये अल्लाह अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। और ये बात जरा सुनिए, और हजरात ये बात समझने वाली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को 3 दिन के बाद, एक वजह ये थी इसलिए दफन किया गया, और एक दूसरी वजह भी थी। नबी पाक के 1.25 लाख सहाबाए किराम थे कमोबेश, और सब ने नबी पाक की जियारत करनी थी। अब ये जो नुक्ता अर्ज कर रहा हूं ना, शायद जिंदगी में आप पहली मर्तबा सुनेंगे। मैंने ये कहा जब कोई फौत हो जाए, जितनी देर वो मुर्दा उसे सलाम कोई नहीं कहता, कब्र में रखो फिर सलाम कहते हैं। मेरे नबी का जनाजा नहीं हुआ था जैसे हमारे हुए हैं। अब ये बात सुनिएगा, इस तरह जनाजा मेरे नबी का नहीं हुआ। तो फिर नबी पाक का जनाजा नहीं हुआ था, तो फिर 3 दिन क्या होता रहा। नबी पाक हजरत अम्मा आयशा के हुजरे में थे, वहां पर 10-10 सहाबी आते, मुस्तफा की जियारत करते और सलाम पढ़ते और चले जाते। ये और मुर्दे हैं जो कब्रों में चल के जिंदा होते हैं, मेरा नबी यही जिंदा था। वाह वाह वाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। ये मौत एक वादा इलाहिया था, और उलमा ने लिखा है अगर मौत न आती तो शायद कोई नबी पाक को रब समझ बैठता। तो ये बंदे के लिए मौत का होना जरूरी है, लेकिन वो आई और चली गई। तुम क्या समझते हो कि ये मौत नबी को मारने आई थी, वो जो खुद मुर्दे जिंदा कर दे। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात, 5 किलो का सर ना हिलाए, मुझे जबान चाहिए आपकी। जो मुर्दे जिंदा कर दे उसे कैसे मौत मारेगी। और वैसे भी आप मिशकात शरीफ पढ़ लें, ये मौत का फरिश्ता जब आया ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो आपने मारी ना चंड, बगैर पूछो आ गया ना जी, मारी चंड तो अख दा डेला कट छड़िया। तो यहां पर मौलवियों को चाहिए ये हदीस पढ़ के बयान करे ना कि नूर दियां तो अखा ही नहीं होंदियां, तो डेला ही नहीं होंदा, तो किदा निकल गया। तो मैं कह जी उस नूर दा है तो फिर हजूर दा भी है। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस बात को समझो यार, ये रब की हिकमतें हैं, हर बंदा नहीं समझ सकता। क्या बात है, वाह। अच्छा उन्हें अपनी अख चुकी ते अल्लाह दी बारगाह बारी ताला केदे कोल कले, ये तो मरना चाहता ही नहीं। अल्लाह तो हर चीज जानता था। अल्लाह ने फरमाया तू गया कैसे है, फरमाया जी मैं बाकियां कोल जाना। फरमाया ना, ये तेनू मूसा यही दसन लगे नहीं भाई हुण ते तू मेरे कोल आया है, ते कल तेनू मुहम्मद मुस्तफा दे कोल ही जाना है। इस अंदाज में मत जाना वरना मारा जाएगा। उन्हें आगे हुण मैं किने जावा, तो फरमाया ऐसे कर जन्नत का एक ले जा बैल, और उन्हें बोल ऊपर हाथ फेर दे, जितने बाल नीचे आ जाएंगे उतने साल जिंदगी बढ़ जाएगी। वो जनाब मौत का फरिश्ता आया था दूरों खलो के, कहता सरकार इजाजत है आ सकना। फरमाया हुण होई ना गल, हुण अगे आ। वो जब आगे आए तो कहा क्या हुआ है, तो कहने लगे मसला ये है, ये एक बैल है, इसके ऊपर आप हाथ फेर दें, और अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो इतने साल जिंदा रहें, फिर मौत आ जाएगी। तो फरमाया फिर जो मरना है ते तू हुणे ही मौत दे दे। हाँ वाह वाह, क्या बात है। उलमा फरमाते हैं ये सिर्फ आदाब सिखाए जा रहे थे। तो ये जो मौत है ना, मौत ये तो नबियों से पूछ के आती है। बल्कि मैं इससे भी बड़ी बात बताऊं आपको, अगर तवज्जो करें तो फ्रंट सीटों वाले हजरात, बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह का जब वली अल्लाह उसे मौत देना चाहता है ना, अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है, वली मरना नहीं चाहता, फरिश्ता मौत ले आई खलोता है। ए बुखारी च 9 मैं जिम्मेदार हूं। होता बता क्या, अल्लाह फरमाता है मैं रब हो के कभी मुतरद्दिद नहीं होता। यहां इसके अलावा मैं तर्जमा कोई नहीं कर सकता वरना मेरी पकड़ होगी। क्यों हज़रत शाह साहब, मुतरद्दिद नहीं होता, जिन्हों आप कहने में हुण मैं की करा, रब हो के मैं मुतरद्दिद कभी नहीं होता। पर जब मेरे वली की मौत का वक्त आता है तो मैं रब हो के मुतरद्दिद होता हूं कि अब ये मरना नहीं चाहता, मैंने मारना है। तो फिर अल्लाह क्या करता है, अल्लाह फरिश्ते से फरमाता है इन्हें एदा मौत को कबूल नहीं करना, ऐसे कर सारे पर्दे हटा, जन्नत में मेरा मकाम रजा इसको दिखा। जब वो देखता है वो अनवार और तजल्लियात, तो वो कहता है ये किसके लिए है। फरमाया ये उसके लिए है जो अभी मरेगा। तो वो कहता है देर ना कर, फिर मौत दे, मैं यहां जाना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस रब की बारगाह में वलियों का ये मकाम है, उस रब की बारगाह में नबियों का क्या मकाम होगा। वाह वाह वाह, क्या। और फिर जिस बारगाह में नबियों का ये मकाम है, वहां इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा। वाह वाह, क्या कहने। आप समझ आ रही। तो कहां गए वो लोग जो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं, वो बाबे बड़े शाह ने।
ये मौत जब आती है तो फरिश्ते को पहले पूछना पड़ता है, उसको पहले सारा निजाम दिखाना पड़ता है, फिर वो मौत देता है, वरना वो मौत भी नहीं दे सकता। समझ आ रही है ना? और यहां होता है जब मौत, अल्लाह ने कुरान में कहा है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, फरमा जब हमारा हुक्म आ जाएगा ना सेकंड आगे होगा ना पीछे होगा। तो मैंने कहा जब ऐसा ही है तो 3 दिन मौत का फरिश्ता नबी के दरवाजे पर क्या करता रहा था? मुझे बिल्कुल गर्मी का एहसास है लेकिन एनी भी कोई नहीं। 3 दिन तक मौत का फरिश्ता हुजूर के दरवाजे पर खड़ा रहा। और मैं आपको एक आज बारीक बात बताऊं, अल्लाह करके आप समझ जाएं। जब वो आवाज लगाता था ना कि मैं आगे आ जाऊं, उसकी आवाज में इतनी दहशत होती थी, सारे बैठे डर जाते थे। पता है आगे कौन बोलता था? ये आज राज की बात सुनिए। हाँ, अल्लाह दी कसमें ना चा साबित गल होवे ना। हजरत अम्मा आयशा खुद नहीं बोलती थी, हजरत अम्मा आयशा हजरत फातिमा को कहती थी, फातिमा एनु तू आख अंदर ना आवे। उसे पता था जिसे फातिमा रोक दे वो अंदर आ ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, ना यार, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। देखो ना यार, घर तो हजरत अम्मा आयशा का है, उजरा तो हजरत अम्मा आयशा का है यार। सुभान अल्लाह ते आखो ना यार। फ्रंट सीट आने हो, पैसों चो निकल के कदी गल भी सुनिया करो, गल का अपना वजन हुंदा जे। असी तुहानू दौड़े माइए सारी हाथी सुना के नहीं टपाया, असी तुहानू मसलक सुनाया है। वाह वाह वाह। और ये मसला सुनो भाई, मौत का फरिश्ता बाहर खलोता, 3 दिन आवाज आती रही। हजरत अम्मा आयशा का घर आप भी बोल सकती थी, पर आपको पता था बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं, शान वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। और अभी तुम कहते हो शाह साहब को और हमें कि ये आल का जिक्र नहीं करते, और हम राफियों की तरह नहीं करते, हम तो मुस्तफाइयों की तरह करते हैं ना। वाह वाह, नारे रिसालत, प्यार के साथ वाह 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 वाह। आवाज कमजोरों वाली, एक मिनट, आवाज कमजोरों वाली अपना अपना टुक्कर हलाल करो। नाराए हैदरी करके बोलो ना जनाब। हजरत सैयदा कायनात को आप कहती थी कि फातिमा आप बोलो, जब आप बोला करती थी तो फिर वो नहीं आता। 3रे दिन के बाद मेरे नबी ने कहा, फरमाया बेटी फातिमा बात सुनो, तवज्जो है जी। फरमाया बेटी फातिमा, फरमा अब जब ये इजाजत मांगे ना तो आप ना बोलना, अब आप ना बोलना। क्यों? फरमाया ये अल्लाह का पैगाम लाने वाला पैगाम ला रहा है। फरमाया ठीक है बाबा जान, आप नहीं बोली। और फिर फरिश्ता फिर भी नहीं आया। हुण मैं मठा जा गल करना, पैगाम पता क्या भेजा? हजूर घर वालों को कहे पर्दा करो, ये आपका घर है, यहां अदब के साथ आया जाता है। समझ आ रही है? ये है हुजूर के घराने का अदब है। फिर वो आया, आका करीम अलैहिस्सलाम, आपका जो वादा इलाहिया था वो पूरा हुआ। बस इतनी सी बात थी। लेकिन कहने का मकसद ये है, नबी पैदा हो तब भी सलाम, और नबी फौत हो तब भी। अब वजह क्या है? मैंने कहा ये जो नबी फौत हुआ है ये आम लोगों की तरह नहीं है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत अबू अल अब्बास, जिनको फजल कहा जाता है, फजल बिन अब्बास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास के बेटे थे। ये हजरत फजल इनका नाम है, सगे चचा के बेटे। ये कहते हैं हुजूर को कब्र में दफन करके निकलने वाला आखिरी बंदा मैं था, आखिरी बंदा मैं था। फरमाते जब मैं निकलने लगा ना, अब ये गौर करें, हमें कई सलाहुद्दीन मशवरा देते हैं, और आप भी शायद आप में से किसी के ज़हन में ये सवाल हो। आप कहते हैं कि मैंने जब निकलने लगा तो मैंने कपड़ा हटा के ना हुजूर का जब चेहरा देखा ना कब्र दे विच, यार मैं जानता पाया मैं आखिरी बारी हजूर दी ज़ियारत ही कर लवां, तो कहा नबी के लब हिल रहे थे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। हम जब कहते हैं ना कि हमारे नबी जिंदा हैं, तो बाद लोग पता क्या कहते हैं, ओए तुसी कहते हो नबी जिंदा ने, तो सहाबा ने जिंदा ने भी दफन कर छड़िया है। और मैं क्या गोलिया सहाबा ने तो बोलदियां वेख के भी दफन कर छड़िया है, तू जिंदा की गल करदा पिया। क्यों? उन्हें पता था कि पहले जिंदा थे जमीन पर, अब जिंदा है जमीन में, पर वो मालिक हैं, जब चाहेंगे जमीन के ऊपर भी आ जाएंगे, आसमानों के ऊपर भी चले जाएंगे। वाह वाह वाह, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत,
تو ये हमें मशवरे ना दिए जाएं कि नबी जिंदा थे तो फिर दफन क्यों किया। वैसे अकली एतबार से देखा जाए तो जिंदा कोई दफन किया जाता है। मैं रुक गया हूं थोड़ा सा। आप देखें ना, आप कपा बीजी दिए, कणक बीजी दिए, मकई बीजी दिए, तो जो रौनी करके आप ना और बी सारा कड़ के घर दे जाने यार छट के रखी, जेड़े जेड़े मरे दाने ने ना साइड ते कर दई, इन्हां नूं पूरन दा फायदा नहीं, इन्हां नूं अग ला दई, जिन्हां दे पल्ले कुछ है ना उन्हीं को ही दफन किया जाता है, दूसरे को दफन ही कौन करता है? तो ये अकली एतबार से देखा जाए ना, जाहिरी एतबार से तो फिर भी यही बात है, वह अल्लाह समझने की तौफीक दे दे। तो मैं बात ये कर रहा हूं, नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए तब भी सलाम। उसकी वजह क्या है? नबी का मुआमला उम्मतियों जैसा होता नहीं। और देखो, नबी की विलादत पर सलाम करना मेरे रब की सुन्नत है। और यही बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, फरमाते हैं जिस दिन मैं पैदा हुआ उस पर भी सलाम, जिस दिन मैं मरूं उस दिन पर भी सलाम, और क़यामत में जब उठूं तब भी सलाम। आज हमें कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को बड़ा जुलूस निकालते हो, आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाते हो, सलाम पढ़ते हो, और कई लोग जलते हैं। मैंने कहा तुम्हारी जलन का उस दिन क्या हाल होगा जब महशर में हुजूर उठेंगे और हम सलाम पढ़ते साथ जाएंगे। बताओ तुम्हारी जलन का क्या हाल होगा। और तुम तो यहां मरे हुए हो, वहां तुम्हारा हाल क्या होगा। और हम तो यहां इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि महशर में हमें ढूंढ ढूंढ के लाया जाएगा कि अगर दुनिया में सलाम पढ़ता था तो आज जहां भी मुस्तफा पे सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर, आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत, शमशीरे आला हजरत। हजरात तवज्जो है कि कोई नहीं है? जिसकी तवज्जो है फ्रंट सीटों पर सुभान अल्लाह फरमाए। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, अर्ज करने का मकसद ये, आपने जो सलाम की प्रैक्टिस की हुई है ना, तो साइया ने लब लब के ले आना है भी आ सलाम दी महफिल हुंदी पई जे। तो इन्हां दे सड़न दा आलम की होना जेड़े इत्थे सड़दे फिरदे ने यार। आए मजा आ गया जी, वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह है, मजा ही देना सी तुहानू। जिन्नू जिन्नू होर आया, एक बंदे नू तो आ गया, जेड़े रह गए हो तुसी भी ले लो। समझ आ रही है हजरात? और इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। मेरे महबूबे पाक अलैहिस्सलाम, आप जब आए तब भी सलाम, आप गए तब भी सलाम, और 3 दिन तक सलाम आपकी जात पे उतरा। और बाद में फरमाया 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम आते हैं, सलाम पढ़ते हैं। और यहां तक फरमाया जब भी मुझे कोई सलाम कहता है तो मैं सुनता भी हूं सलाम और जवाब भी इनायत फरमा देता हूं। ये मेरे नबी पाक ने फरमाया। तो कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसमें कोई सलाम ना पढ़ रहा हो, तो उस लम्हे में हुजूर जवाब ना दे रहे हों, तो जिंदा होते हैं तो जवाब देते हैं ना। ये तो एक अलग मसला है। लेकिन नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए तब भी सलाम। बल्कि यहां पर कहते हैं चलो सलाम वाली गल तो ठीक है, तुसी ईद बनाई फिर दे हो। हमें ये कहते हैं कि तुमने तो ईद बना डाला है। आप देखें हजरात, ये आपके अकीदे के लिए जरूरी बातें हैं। मैंने कहा मुझे ये बताइए जुमा ईद है या नहीं है? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताओ ना मुझे। और यार पखे करते रहने जो करते, मेरे हाल वेखो अल्लाह, पहली बारी पखिया वेख्या नहीं करते हैं, वो कई तोते उड़े बैठे थोड़े, इधर वेखो। आप मुझे ये बताएं जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, जुमा ईद है कि नहीं है? लेकिन मेरा सवाल है कहां गए वो लोग जो कहते हैं साल में 2 ईदें, कि छोटी दे के वड्डी आते, हर जुमा भी ईद है। वाह वाह वाह, क्या कहने। अल्लाह के बंदे, तुम्हें गलत किसी ने इंफॉर्मेशन दिया कि साल में 2 ईदें, हर जुमा ईद। हुजूर ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीना ईदा। फरमाया जुमा ये तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ने इसको ईमान वालों के लिए ईद बना दिया है। क्या कहने। और इधर देखो मेरे मुर्शिद अत्तार हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मदनी चैनल वाले, आपने नमाज के अहकाम किताब लिखी, उसके अंदर जुमे वाले चैप्टर में आपने ये हदीस लिखी। और ये सारे हजरात सुने जो बेचारे ना हज कर सकते हैं, ना उम्रे पे जा सकते हैं, ना मक्के जा सकते हैं, ना मदीने। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल हज्जा इन्नल जुमुअता हज्जुल फुकरा वल मसाकीन। फरमाया ये जो जुमा है ये गरीबों का हज है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, ये जुमा क्या है? गरीबों का, जो आज तक नहीं जा सका और बज़ाहिर सबब नहीं है। और मेरे भाई तड़पना, परेशान न हो,
तू सही और अकीदा आलिम के पीछे जुमा पढ़ लिया कर, रब तुझे हज का सवाब अता फरमा देगा। वाह 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 वाह, क्या बात और है। हमेशा गरीब बंदा टाइम से मस्जिद में आता है, अमीर बंदे के पास बेचारे के पास तो टाइम ही नहीं होता। वो ते रकू दे टाइम ते आउंदा ते जल्दी जल्दी सलाम पढ़िया ते बाद वालियां सुनता भी छड़ियां ते टुर गया। और अगर कोई पूछे चौर साहब इतनी जल्दी चले गए हो, तो कहते हैं फर्ज जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी भी तो नहीं है ना। इतना लुंडा दीन कर दिया तुमने, और फिर तुम्हारे पल्ले क्या बचा वो भी देख रहे हो। और जो गरीब होता है वो सुनते भी पढ़ता है, वो नफल भी पढ़ता है, उसे पता है जो जुमे वाले दिन सबसे पहले आए अल्लाह ऊंट की कुर्बानी का सवाब अता फरमा देता है। समझ आ रही है मेरे भाई? तो कहने का मकसद ये है, ये जुमा कोई आम दिन नहीं है, ये गरीबों का हज है, ईमान वालों की ईद है। वाह। और ये कहना कि साल में 2 ईदें हैं, हर जुमा, आपको पता है 52 जुमे टोटल एक साल में होते हैं, 52 जुमे। क्या बात है, वाह क्या तहकीक, वाह वाह सुभान अल्लाह जी। 52 ईदा है तो 2 ओ 54, तो मैं क्या 54 पचा गया, एक रबीउल अव्वल वाली भी 50 तो सही ना यार है। वाह वाह क्या बात है, वाह। अगरचे मेरा लहजा खतीबाना है, मैं इस पर दलील देता हूं, सिर्फ खतीबाना लहजा कर बात करें, मैं दलील देता हूं कि रबीउल अव्वल नबी पाक की आमद का दिन, ये ईद कैसे है। इधर देखो, ये जो जुमा ईद बना ना, नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047, आप उठा के देखें। नबी पाक से ये पूछा गया, मेरे आका ये बताएं कि जुमा ईद क्यों बना। वाह क्या बात है, ये सवाल हुआ है। बात समझ आ रही है ना? क्या इसलिए मैं ठहर ठहर के बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। जुमा ईद क्यों बना, ये सवाल हुआ, और मेरे नबी ने जो जवाब दिया वो मैं पढ़ता हूं। फरमाया फीहे खुलिका आदमो व फीहे कोबेदा। अब जवाब सुनिए। फरमाया जुमा इसलिए ईद बनाया गया, इसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए और फौत भी हुए, लिहाजा ये ईद बन गया। मेरा सवाल ये है, आदम पैदा हूं तो ईद समझ में आती है, फौत हो जाए फिर भी ईद। क्या बात है, क्या कहने। अब आपका इम्तिहान आ गया, मुझे पता है आप अभी नहीं बोलेंगे। वाह मुफ्ती साहब, वाह। आदम आए तब भी ईद, हजरत आदम फौत हुए तब भी ईद। वो लोग भी कान खड़े करें जो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को नबी पैदा हुए तो आने पर तो चलो ईद हो गई, तो 12 रबीउल अव्वल को नबी फौत हुए तो जाने पर ईद कैसे हो गई। ओ मरे, आदम पैदा हो तब भी ईद है, फौत हो तब भी ईद है। और इधर देखो, यहां सूफिया ने लिखा, फरमाया नबी आए तब भी ईद होती है, नबी जाए तब भी ईद होती है, पर कैसे? आए तो उम्मत की ईद है, जाए तो नबी की अपनी ईद है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरे, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान हज़रात गिरामी, नबी आए तो उम्मत की ईद है। अब देखो ना हमारी ईद कैसे हो गई। नबी पाक आए, माँ बाप को इज्जत मिल गई, बेटियों को इज्जत मिल गई, बीवियों को इज्जत मिल गई, मजदूरों को इज्जत मिल गई, गरीबों को इज्जत मिल गई। मेरे नबी पाक आए, आपने आकर हमें बुतों के सामने झुकने से रोक दिया, रब के सामने झुका दिया, हलाल कमाने का कहा, हलाल खाने का कहा। कुरान आ गया, रमजान आ गया, ईमान आ गया, हज आ गया, ज़कात आ गई, जिहाद आ गया, मक्का आ गया, मदीना आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात जो है, नबी आए तो इतनी चीजें मिल गई तो हमारी तो ईद हो गई। और सिर्फ इतने नहीं, अगली गालते मैं नहीं कहना किसी ने बोलो, अगर दिल को बात लगे तो बोलना। पहली उम्मतें जब गुनाह करती हैं, चेहरे बिगड़ते हैं, बांदर सुअर खिनजीर बनते हैं, माथे पर गुनाह लिखा जाता है, दरवाजे पर लिखा जाता है, चेहरे बिगड़ जाते हैं, जमीन में धंसा दिया जाता है। तो जो मेरी तरफ, जब मेरे आका आए, हमारे चेहरे सलामत, गुनाहों पे पर्दे, घर सलामत, हमें शहर बर्बाद नहीं किए, बचा दिया गया। और जिस नबी के आने पर इतना कुछ मिले, उसके आने पर मातम नहीं बनता, फिर मीलाद ही बनता है। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी को समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात को? वो जिस नबी का सदका हमारे ऊपर इतने करम हुए। आज ना हुजूर शाह साहब की बिला, मुफ्ती साहब हजरत शाह जी बिलाल साहब, लोग हमसे सवाल करते हैं मिलाद कौन करे। मैंने कहा नबी के आने पर जिसके माँ बाप को इज्जत मिली वो मिलाद करे, और जिदा माँ प्यो जलील होया है ना करे।
نبی کے آنے پر جس کی بیٹیوں کو عزت ملی وہ میلاد کرے اور جہاں تیاں ذلیل ہوئیاں نہ کرے. نبی پاک کے آنے پر جس کی بیویوں کو عزت ملی وہ میلاد کرے اور جن کی ذلیل ہو گئی وہ نہ کرے. نبی کے آنے پر جس کا چہرہ سلامت ہے وہ میلاد کرے اور جن کے بگڑے ہوئے ہیں وہ کل بھی میلاد نہیں کرتے تھے وہ آج بھی نہیں کرتے. واہ 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 واہ. ہو جائے جس غدا پر عنایت حضور کی, ہو جائے جس غدا پر عنایت حضور کی, سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی. ارے ماں کی خالی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئی, اللہ نے یوں منائی ہے ولادت حضور کی, آمد مصطفیٰ. حضرات اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو میں جلدی سے دوبارہ دہرا دوں. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے. بھائی میلاد نبی پاک کے آنے کون منائے؟ میں نے کہا جس جس کو عزت مل گئی, ماں باپ کو, بہن بیٹی کو, گھر والی کو, اور اس کا چہرہ سلامت ہے وہ میلاد کر لے. تو جڑا باندر ورگا ہے نہ کرے. میں نے کب کہا ہے کرو یار؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ عزیزان گرامی قدر, اس واسطے ہم احسان مند ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے, اس لیے ولادت کا جشن مناتے ہیں. لیکن حضرات ہم سب کو نا یہ باتیں ویسے سمجھنی ضرور چاہیے. میں آپ کو ایک دو ضروری گزارشات کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا, کیونکہ آج تقریر پہلا نمبر شاہ صاحب دا ہی ہے, میں آپ دیتی جانا جو, لیکن جو پیغام دینے آیا ہوں تو کچھ آپ لے لیں عقیدے اور مسلک کے حوالے سے ضروری گزارشات. توجہ ہے جی حضرات, ادھر دیکھیں میری طرف. نبی پاک علیہ السلام آپ نے جلوہ گری فرمائی نا تو مہینہ ہے ربیع الاول کا. صاحب سبل الہدا والرشاد نے شاعری ایک بات لکھی, وہ کہتے ہیں رمضان میں حضور نہیں پیدا ہوئے, محرم میں نہیں پیدا ہوئے, حج کے مہینے میں نہیں پیدا ہوئے, کیا وجہ ہے ربیع الاول میں کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا, اگر نبی پاک ان مہینوں میں آتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور کی اپنی برکت نہیں, رمضان کی ہے, حج کی ہے, محرم کی ہے. فرمایا ایسوں کا بوتھا بند کرنا تھا. کسی مہینے میں ہمارے یار کو برکت نہیں دی, ہمارے محبوب نے سب کو برکت عطا فرمائی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اس لیے الگ مہینے کا انتخاب کیا گیا. واہ واہ. اور دوسری وجہ, ربیع الاول یہ بہار کے مہینے کو کہتے ہیں. ربی بہار کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. کس کو کہتے ہیں؟ بہار. اور میں آپ کو بتاؤں جب تب نبی پاک آئے تھے نا, تب اس وقت یہ ربیع الاول ایمانی اور اسلامی اعتبار سے بھی بہار تھی اور فزیکلی طور پر بھی بہار تھی. یعنی اپریل کا مہینہ, اور 20 یا 22 تاریخ علماء نے لکھی ہے, اپریل کا مہینہ یہ بہاروں کا موسم ہوتا ہے, پنگارے دا موسم ہوتا ہے, جشن بہارا منایا جاتا ہے. یعنی کیسا اللہ نے نظام بنایا کہ موسم کی بھی بہار ہے, ایمان کی بھی بہار ہے. واہ واہ. کیا اچھا یہاں ایک نقطہ دوں, ہمارے شاہ صاحب کے اور میرے مشترکہ استاد ہیں علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فوت ہو گئے. انہوں نے ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے یہ کہا, اللہ نے یہ بلا انتظام کیوں کیا, ادھر سے بہاروں کا مہینہ اور ادھر سے ربیع الاول یہ بھی بہار کا مہینہ, وجہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ کو پتا تھا کہ ابھی تو جشن کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن بہاروں کے موسم میں خود بخود سجاوٹ, ہریائی, پھول پھل نکل آتے ہیں. فرمایا قدرتی سجاوٹ رب کر دیتا ہے, آمد مصطفیٰ کی ہو جاتی ہے. واہ واہ. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ. اللہ اکبر. اب بات سمجھ آئی ہے, نبی پاک جب آئے تھے تو بہاروں کا مہینہ کیوں تھا؟ تاکہ ماحول ایسا, سارا سال بارشیں برسی, ہر طرف ہریائی ہو گئی, درخت ہرے ہو گئے, پھول نکل آئے, پھل نکل آئے, جانور فربا ہو گئے, دودھ بڑھ گیا, چشمے بھر گئے, ندیاں چل پڑی. اور صرف یہاں تک بات نہیں, سارا سال بارشیں رہیں, راحت و سکون رکھا, بیماریاں دوڑ گئیں. اور نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لانے کا وقت ہوا, آسمان کے ستارے نیچے کر دیے گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ آج کسی عورت کو بیٹی نہ دینا, بیٹے عطا کرنا. کیوں؟ فرمایا جب ان کو بیٹیاں دی جائیں تو یہ کافر ہیں, بیٹیوں سے چڑھتے ہیں. آج ہم نے کسی کو چڑھانا نہیں, مصطفیٰ کی ولادت ہے, بیٹے عطا کر کے خوش کر دیا جائے. واہ واہ. آمد مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے مصطفیٰ, تاجدار ختم
नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी अत्तारी साहब। ये इसको समझ आई जरा, सुभान अल्लाह फरमाए मोहब्बत के साथ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद है और ये खुदाई इंतजाम हो रहा है हुजूर की विलादत अक़दस अनवर अत्हर पर। लेकिन जो बात सुना रहा हूं ना, इस बात से आपने पीछे नहीं हटना। और बिलखसूस ये नौजवान हजरात, नौजवान बच्चे, ये मेरे भाई, इनकी मुझे बड़ी जरूरत है। बूढ़ों की हमें अब फिक्र नहीं है, चूंकि इनका अकीदा पक्का है। ये नौजवान है जो मोबाइल पर मिर्जे जैसे के सुन को अकीदे बदलते हैं, और कोठे आलियां को अकीदा ना ले, अहमद रजा आलियां दे को ले। वाह वाह वाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़े रज़ा। हजरात इस वास्ते जो मैदान में निकले उससे अकीदा लो, पता भी चले बंदा साइया आला है। और मैं आपको एक बात बताऊं, माड़ी जी गालू नहीं, नेट से हम सुन लेते हैं। इधर आओ, मैं एक पैगाम देना चाहता हूं और बड़ा जरूरी। हजरत शाह साहब आपकी तवज्जो, मुफ्ती साहब की बिला हजरात उलमा आपकी तवज्जो। इधर देखो सारे, और नेट वाले इधर देखो। जदों तुहाडा अब्बा ते अम्मी बीमार होवे ना, खबरदार डॉक्टर लैके जाया जे। तुसी कहना अब्बा जी दसो की रौला है जी, मैनू दिल की तकलीफ है। उन्होंने कहना ले आप हुणे नेट खोलना है तो दिल दीयां बीमारियां 1500 आ जानियां ने, ते ओदा इलाज मैं तेन हुणे दवाई लिया देनी। आपा क्यों डॉक्टर को जाइए, 4000 फीस ते 6 घंटे खज्जल होइए ते चेक कराइए। ले नेट है ना, सानू किहड़ी लोड़ है डॉक्टरां कोल जाणू, एवें छुरा फेरदे ने, इन्हां ने एवें रौले पाए ने। ते अब्बे तेरे ने माशाअल्लाह फड़ के तेनू पा लमिया लेना है, लित्तर मार मार तेनू बांदर बना देना है। उन्हें आखना है और नेट ते ही अगर सारा कुछ हुंदा तो फिर पुत्र डॉक्टरां नू मार छिड़ना सी। हर शोबे का एक्सपर्ट होता है, पढ़ा लिखा होता है, वहां का फाजिल होता है, फिर वो चेक करता है, फिर दवाई देता है, फिर आराम आता है। मैंने कहा तेरा बाप नेट की दवाई नहीं लेने देगा। वजह क्या है? वो कहता है मसला मेरी जान का है। और तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, अगर जान का मसला हो तो नेट वालों पर तुम एतमाद नहीं करते, तो जब ईमान का मसला हो तो फिर भी नेट वालों पर एतमाद न किया कर। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। ये जो तुम नेट वालों के पीछे भागते हो, जब तक नहीं था इतने शुकूक व शुबहात नहीं थे, और जब आ गए तो तुम शक में पड़ गए। ते बाबे आज भी कायम ने, बाबे कल भी कायम। चूंकि इनके पास ये मोबाइल नहीं और ये शक में नहीं पड़ते, अपने आप को शक से निकालो। इमाम गजाली ने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया किस आलिम के पास बैठना चाहिए? हुजूर ने फरमाया जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन में ले आए, तकब्बुर से निकाल कर आजिजी में ले आए, लड़ाई से निकाल कर मोहब्बत में ले आए, जो तुम्हें रियाकारी से निकाल कर इखलास में ले आए, उस आलिम के पास बैठ जाना। ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मेरे भाई इस वास्ते नेट के पीछे मत भागो। अब बात दूर ना चली जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागरी फरमाई रबीउल अव्वल में। किस महीने में? आवाज कमजोरों वाली है, डाडी कमजोर वाली है। रबीउल अव्वल, इधर देखिए, रबी बहार है। ये बहारों के मौसम में नबी पाक को भेजने का क्या मतलब था? अब ये 3-4 नुक्ते होंगे, सुन लो, उसके बाद फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा है, ये जो बहार का मौसम होता है ना, इसमें कोई भी बीज अगर आप जमीन में डाल दें तो वो बड़ी जल्दी निकलता है और जमीन का कलेजा फाड़ के निकलता है, और वो पहले तना, फिर पौधा, फिर दरख्त और फिर छा जाता है। अब नुक्ता सुनिएगा, अगर समझ आए बोलना, वरना नहीं। मेरे नबी को बहारों के मौसम में इसलिए भेजा कि अब जो नबी आ रहा है यह भी कुफर का कलेजा फाड़ के निकलेगा, पहले मक्के में, फिर मदीने में, फिर हिजाज में, और फिर पूरी दुनिया में छा जाएगा। वाह 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 वाह, देख लो, ऐसा ही हुआ। क्या बात है, वाह वाह। आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। भाईजान रबीउल अव्वल में भेजने का एक इशारा यह था कि अब ये नबी छा जाएगा और कुफ्र का कलेजा फट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये थी, जो बहारों का मौसम होता है ना, ये बड़ी टोटके की बात अर्ज कर रहा हूं, अगर आप ध्यान करें तो इसमें ना गर्मी ज्यादा होती है ना सर्दी ज्यादा होती है, दरमियाना काम होता है। इसमें ना रात लंबी होती है ना दिन लंबा होता है, दरमियाना काम होता है। ऐसे ही है? कहा जी बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? साहिब सुबुल हुदा व रशाद लिखते हैं, मतलब ये है कि जिस तरह ये मौसम मुअतदिल है, इसमें नबी आए तो आने वाले की शरीयत भी मुअतदिल है। तुम्हारे लिए कोई सख्ती नहीं होगी, बड़ी प्यार मोहब्बत वाली तुम्हारे लिए शरीयत होगी।
50 नमाजें थी, 5 रह गई, पढ़नी 5 है, सवाब 50 का है। 6 माह के रोजे थे, 1 माह के रह गए, रखने 1 माह के, सवाब सबका मिल जाएगा। तवज्जो है कि कौन नहीं आप हजरात की? तो ये हमारे लिए शरीयत आ गई। अच्छा, तीसरा नुक्ता क्या था? ये जो बहार होती है ना, बहार, इसके अंदर जुमला अनाज और फ्रूट, जिन चीज़ों के साथ इंसान ग्रोथ पकड़ता है, मजबूत होता है, ये नश्व नुमा पाता है, वो चीज़ें सारी पैदा होती हैं। अल्लाह ने इस महीने में हबीब को पता क्यों भेजा? ये नुक्ता है सूफियाना, अगर आप समझें तो इंसान का एक जिस्म होता है और एक इसमें रूह होती है। जिस्म की अपनी गज़ा है, रूह की अपनी गज़ा है। फरमाया कि बहारों के मौसम में जिस्म की गज़ा ज़मीन में पैदा होती है ताकि तुम्हारा जिस्म तकड़ा रहे। इसी मौसम में हमने हबीब को भेजा ताकि तुम्हारे रूह की गज़ा भी आ जाए। ये हुजूर हमारे रूह की गज़ा बन के तशरीफ लाए। ये मुनासबत थी, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम को रबीउल अव्वल में भेजा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और फिर एक नुक्ता और समझने वाला है, जब बहारों का मौसम आ जाए ना, तो किसी भी दरख्त को बताना नहीं पड़ता कि तेरी बहार आ गई है और पत्ते हरे निकाल लो और खुशियां मनाओ, यार तेरी बहार आ गई, नहीं, बताना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद हरा हो जाता है। तो जब ईमान की बहार आए ना, तो किसी को बताना ना पड़े कि झंडा लाला, लैटा लाला, रबीउल अव्वल आ गया है, आप तेला ओए बूटियां नू इन्ना शऊर हैगा, तैनू इन्ना शऊर कोई नहीं हैगा। वाह वाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अपने अंदर ये शऊर पैदा करना चाहिए। और ये याद रखो, जो मिलाद नहीं मनाते पुत्र, तेरे लिए भी नुस्खा है मेरे पास। यही साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा, वो फरमाते हैं, एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत मंसूर, ये मंसूर हल्लाज नहीं, ये और मंसूर है। उन्होंने नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत की और कहा, हुजूर आपकी उम्मत बड़ा मिलाद करती है और बड़े खर्चे और बड़े लंगर करती है, तो क्या आपको पसंद आता है? तो मेरे नबी ने जो जवाब दिया, तवज्जो, फरमाया मन फरेहा बिना फरेहना बही, तर्जमा पंजाबी च करांगा ते चस आएगी। फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है, असी भी ओदे जम्मण ते राजी हां। वाह 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 वाह, क्या बात है। नाराए रिसालत, मरहबा 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 मरहबा, आया है, आया है, आया है, आया है, वाह वाह। लो जी, आखिरी बात, और आपको छुट्टी दे रहे हैं, आखिरी बात। चूंकि उलमा आइम्मा खुतबा हैं, इन्होंने नमाजों पर भी पहुंचना है और हमारा भी सफ़र ढेर सारा लंबा शुरू होने वाला है। ये तो आज का दिन खाली था, तो शमसी साहब ने कहा, जी इत्थे आना ही आना है, साढ़े बंदियां दी ख्वाहिश है, असी क्या फिर असी आना ही आना है। लेकिन खुशी हुई कि इतने उलमा और सादात ने शमसी साहब की सरपरस्ती फरमाई और पूरे मोहल्ले वाले आप इनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपको इस पर बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ये हमारे इमरान साहब हैं, अली शान साहब हैं, ये हमारे बिलाल साहब हैं, ये आपके भाइयों की तरह हैं। ये नौजवान उभरती हुई आवाज़ें हैं, आप इनके साथ मोहब्बत किया करें, इनके साथ मिलकर दीन का काम करें, हर फितने का मुकाबला करें, ताकि आपके आने वाली नस्लों में भी हुजूर की मोहब्बत करने वाले पैदा हो जाएं। कभी भी सहाबा और अहले बैत की गुस्ताखी और बेअदबी करने वाले बंदे के पास मत बैठना, ये हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है। समझ आ रही है? आखिरी गुजारिश, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए थे ना, आपने ना हमें बहुत कुछ अता किया है जो हमारे लिए ज़रूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा, जी हमारे मोहल्ले में एक औरत है, बड़ी इबादत गुजार है, लेकिन ज़बान उसकी सही नहीं है, तंग बहुत करती है। फरमाया, इस ज़बान गंदे होने की वजह से वो जहन्नम में जाएगी। दूसरा शख्स आया, हमारे मोहल्ले में एक औरत है, इबादत ज़्यादा नहीं करती लेकिन अखलाक बहुत अच्छा है। हुजूर ने फरमाया, अखलाक की वजह से जन्नत में चली जाएगी। अपनी ज़बानों को दुरुस्त कीजिए। आज हमारी ज़बानें बड़ी तल्ख हैं। मुझे ना एक बड़ा हैरानगी होती है, पूरे जिस्म में शुगर है तो ज़बान दे जहर भरी हुई है। काश के हमारी ज़बानों को शुगर हो जाए। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात। ये मेरी गल दी किसी को नहीं समझ आई, मैं की आख्या। क्यों जी, शेख साहब इसे तरह ही हैं। ए साडे शेख साहब इंग्लैंडों आए ने, बड़ी मुहब्बत वाला बंदा है, सलाम कलाम भेजते रहते हैं, तो अज वेख्या मैनू खुशी हुई है। अल्लाह तुहानू बरकत देवे। देखो, पूरे जिस्म नू शुगर है, जबान दे जहर भरी हुई। जबान तो खपरा सप है, हर बंदे नू डंग मारदा है, वड्डदा है। काश के हमारी जबानों को शुगर हो जाए, यानी जबान मीठी हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल कमाल। औखी गल सी, तुसी सुभान अल्लाह नहीं आखी, पर मैं तुहानू माफी दिना। लेकिन पैगाम है, इस बात को समझिएगा।
अपनी जबानों को मीठा कीजिए, ना कि अपने पूरे जिस्म में शुगर है और बाकी सारे डंग मार दे फिर दो। अच्छा, ये पहली बात। अब दूसरी बात भी समाअत कीजिएगा। आप ना बैस मोबाइल से अल्लाह का नाम निकल आओ, आ देखो, यकीन करो हर बंदा है मैं बैस ते फलाना। हमें बैस का हुक्म नहीं है, हमें हुक्म है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। सीधे रास्ते पर चलो। सीधा रास्ता किनका है? इनाम वालों का। इनाम वाले नबी और वली हैं। कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चलो, ना के बहस करो। साडी कौम दा ये हाल है, अद्धा घंटा बहस कर दे जी अमरूदां वाले दे नाल, ए मिठे ने, ए मिठे दे, मिठे लैके ना फिर कहंदे ने उत्ते लूण भी पा दे। अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, कमाल कमाल। ऐसा ही है बिल्कुल। अद्धा घंटा बहस की कमलिया, ओए ओदा भी वक्त जाया कीता, उत्ते फिर लूण सट्टी खलोता ही। ओ यार तू केड़ी बलां दा बनया, मेरी समझ तो गल बाहर है। बहस करने वालों का ये हाल होता है, बहस करते हैं लेकिन बाद में अपनी बातों के मुखालिफ होते हैं। जिनने बहस करने वाले, मुझे कोई बता दे 5 वक्त का नमाजी हो, कोई बता दे जो माँ बाप का बाअदब हो, कोई बता दे जो सहाबा और अहले बैत, सिर्फ बहस है। कुत्ते वांगू भौंकना सीखा है, मस्जिद में आकर रब की बारगाह में झुकना नहीं सीखा है। अल्लाह दे बंदे जिन्ने आप बैठे हैं, जरा मस्जिद वाला रुख करो, नमाज वाला रुख करो, को हजूर वाले पासे आओ। आप केड़े पासे पै गए हैं जनाब? है ना हमारी गलती? बोलो तो सही ना यार। तो अपनी इस गलती को दूर कीजिए। और तीसरी बात, अपने माँ बाप को नाराज ना किया करो। नबी पाक ने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह तुम्हें कबूल आज का सवाब अता फरमा देगा। आज माँ बाप को लोग सता रहे हैं, और इन माँ बाप से भी कहूँगा अल्लाह का ना जे तुसी भी अपनी औलाद से थोड़ी जी शफकत फरमाया करो। बस औकात तुम भी बहुत ज़्यादा सख्ती करते हो। नहीं, आका करीम ने फरमाया अकरिमू औलादकुम व अहसनू अद्दबहुम, फरमाया अपनी औलाद की इज्जत करो और इन्हें अच्छा अदब सिखाओ। ये मेरे नबी ने फरमाया। अपनी औलाद के चेहरे पर तुम थप्पड़ नहीं मार सकते, ये इंसान की तौहीन है। और इस औलाद को भी चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते, ये माँ बाप की तौहीन में शुमार होता है। जितनी मर्जी सख्त बात करें, सामने से खामोश हो जाओ। कहते ने अब्बा तैनू पता ही नहीं हैगा। मैं क्या वाकई उन्होंने पता होंदा, तेरे वर्गी चबड़ नहीं सी जमनी उन्हें। बंदे दे बच्चे बनिया करो ते अपने प्योवां दे नाल मत्थे ना लाया करो। ओ तवज्जो है। अपनी बहन बेटियों की इज्जत किया करो। और अगर औरतें सुन रही हैं तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आपको सारे हक हुजूर ने दिए हैं, ये जमाने वाले तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। और तुहानू जिंदा पूरे आ जांदा सी, तुहानू बचाया हजूर ने आके। लेकिन आज ऐसी हरकतें ना करो कि जिससे तुम्हारा बाप परेशान हो, तुम्हारे भाई शर्मिंदा हों और दोबारा फिर तेनू गोलियां मारन तो तेनू पूर के आउण। ऐसी गंदी हरकतें ना कर। मैंने जो पैगाम देना, मैं दबे लफ्जों में मैं पैगाम दे रहा हूं। ए मोबाइला ने बेड़े गरक की तेजे, इस वास्ते बचो यार, इन औरतों को भी बचाओ और खुद भी बचो। कभी तो पाक साफ रह लो। ये जवानी किसी की अमानत है, ये अमानत उस तक पाकीज़ा पहुंचाओ। हम जब अपनी अमानत नहीं पहुंचाते तो फिर हमारे घरों का सुकून भी नहीं हमें मिलता। गिरामी कदर हजरात, हम सबको चाहिए कि हम हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इससे मोहब्बत किया कीजिए, मदनी चैनल देखा कीजिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम। बिस्मिल्लाह शाह साहब, माशाल्लाह हमारे नासिर फारूक भाई, आए मेरे अब्बे दा यार है, बड़ी खुशी हुई। एक ऐलान समाअत फरमाएं। इंशाल्लाह 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़ इशा सालाना उर्से पाक